This is Sushma Madan this side, taking your business study classes. In the last videos, we have started the chapter Sources of Business Finance. In this video, we will continue with the same chapter and we will cover the meaning, merits and demerits of retained earning, that is flowing back of profit, loans from financial institution, loans from commercial bank, as well as public deposit. So let us start with the retained earning. Retained earning जैसे कि नाम बता रहा है, रखा हुआ profit. What happens in the company, dear students? Company earns profit और profit का क्या करती है? They divide that profit. Some part is kept for reinvestment purpose or for any other purpose, and some part is divided among the shareholder as a dividend. As all of you know, the shareholder gets the profits share in shape of dividend. But it is not necessary कि कंपनी सारा का सारा प्रॉफिट शेयर होल्डर्स को एज ए डिविडेंड दे दे, वो कुछ हिस्सा अपने पास रखती है ताकि वो आगे री इन्वेस्टमेंट कर सके, ग्रोथ कर सके, कोई कॉन्टीजेंसीज हो जाए कंपनी को, कोई प्रॉब्लम्स हो जाए तो उनको इजीली उस मनी से मीट कर सके. So this is also called source of self financing as well as the flowing back of profit. Flowing back of profit भी बोलते हैं retained earning की. So let us discuss the merits of retained earning. The first point is no cost. No interest has to be given. No advertisement has to be given for getting the fund from the general public. No dividend is given for this cost. So this is the zero cost fund. Second is no charge on asset. No charge on asset मैंने आपको पहले भी बताया था कि there is no need of keeping any asset as a security. कोई भी एसेट गिरवी रखने की जरूरत नहीं है इस फंड को रेज करने के लिए. And this fund, third point is, this fund also helps for the growth and expansion of the company. Increases the market value of share. This fund helps to increase the market value of share. अब क्वेश्चन आता है कैसे? अब क्या हुआ कि अगर कंपनी के पास सफिशिएंट मनी है तो उसके पास उस मनी को इन्वेस्ट करने का भी एसेट्स इंक्रीज होते हैं. एसेट्स इंक्रीज होते हैं तो इन टर्न क्या होता है? कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बढ़ती है, क्रेडिबिलिटी मिलती है, क्योंकि अगर आपने क्रेडिट लेना है कंपनी ने तो दे नीड सम एसेट टू कीप एज अ सिक्योरिटी एंड इन टर्न इट इंक्रीजेस द अर्निंग कैपेसिटी. तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं उससे क्या होता है? कंपनी की गुडविल बढ़ती है जिससे कि कंपनी के मार्केट वैल्यू की शेयर की मार्केट वैल्यू इंक्रीज होती है. सो नाउ लेट अस डिस्कस विद द डीमेरिट्स एंड सर्टेन सोर्स. It is not necessary कि every year company is earning huge profit. अगर नहीं profit हुआ, थोड़ा profit हुआ, but it is also mandatory to give dividend to the shareholder to keep the market price of share stable. Second is dissatisfaction among shareholders. Sometimes company feel कि समटाइम शेयर होल्डर फील कि कंपनी क्या करती है, कंपनी हमें कम पैसा देती है, सारा अपने पास रखती जाती है, डिविडेंड कम दे रही है, तो विच क्रिएट्स डिससेटिस्फेक्शन. देन डेंजर ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन. अब डेंजर ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन क्या होता है कि अगर कंपनी बहुत सारा फंड एज ए रिटेन्ड अर्निंग रख रही है और उसको वो प्रोडक्टिव पर्पस के लिए यूज कर रही है एंड दैट फंड इज केप्ट आइडल, वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, means there is a over capitalization, no usage, so it also increases the risk of company's profitability. Now we will discuss the second source of business finance, that is public deposit. जैसे कि नाम बता रहा है, deposit raised from the public is called public deposit. If the company need fund, they invite general public, उनको बोलते हैं कि आप हमें पैसे दो, we will give you the interest. And here अब इस पे कोई एसेट सिक्योरिटी में नहीं रखा जाता, पब्लिक डिपॉजिट का जो मेन फैक्टर है. तो अब कोई भी पर्सन विदाउट कीपिंग एनी एसेट एज ए सिक्योरिटी कैसे कंपनी को फंड देगा? सो
दिस फंड इज ओनली टेकन बाय द गुड कंपनीज, जिनकी मार्केट वैल्यू आउटसाइड कैपिटल मार्केट में बहुत अच्छी है। और देयर इज ऑल्सो रेगुलेशन कि हर कंपनी जितनी उसकी शेयर कैपिटल है उसके 25% से ज्यादा पब्लिक डिपॉजिट रेज नहीं कर सकती। और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी जो है नॉर्मल किसी भी डिपॉजिट से ज्यादा होता है, ताकि अगर कोई रिस्क ले रहे हैं इन्वेस्टर्स तो दे शुड गेट द हायर रिटर्न। नाउ व्हाट इज द मेरिट? मेन मेरिट आई हैव टोल्ड, दिस इज अ मेजर फैक्टर। कोई भी एसेट कंपनी को मोर्टगेज नहीं करना पड़ता। टैक्स सेविंग, इसका जो टैक्स है इंटरेस्ट, नॉर्मल टैक्स भी हम माइनस करते हैं पहले प्रॉफिट में से, और उसके ऊपर नॉर्मल कोई भी इंटरेस्ट है हम उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, और जो प्रॉफिट बचता है उसी के ऊपर टैक्स दिया जाता है। सो इट हेल्प्स टू सेव द टैक्स ऑन द कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू। सिंपल प्रोसीजर, ये प्रोसीजर है जो है इसको पब्लिक डिपॉजिट्स को रेज करने का, वेरी सिंपल। नो, जैसे कि शेयर और डिबेंचर्स में लॉट्स ऑफ फॉर्मेलिटी हैज टू बी डन, तो यहां पर बहुत कम फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है। कंट्रोल, द मेजर फैक्टर ऑफ एवरी कंपनी, कि उनका जो है कंट्रोल डिल्यूट ना हो, कंट्रोल ज्यादा लोगों के पास ना हो। तो कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से पब्लिक डिपॉजिट इज वेरी गुड सोर्स ऑफ फाइनेंस। कुछ टाइम के लिए मनी चाहिए, कंपनी नहीं चाहती कि उसका कंट्रोल किसी आउटसाइडर के पास जाए, सो दे कैन रेज द पब्लिक डिपॉजिट। नाउ लेट अस डिस्कस द डीमेरिट्स फॉर द पब्लिक डिपॉजिट। ये फंड जो है मैच्योरिटी पीरियड इज शॉर्ट, नॉट फॉर लॉन्ग टर्म सोर्स नहीं है, एंड लिमिटेड फंड है। जैसे कि मैंने बताया कि 25% से ज्यादा रेज नहीं कर सकती। अगर शेयर कैपिटल जितनी है उसका 25% ही कंपनी रेज कर सकती है। एंड नॉट सुटेबल फॉर न्यू कंपनी, एवरी कंपनी विल नॉट गेट फंड थ्रू द पब्लिक डिपॉजिट, ओनली रिप्यूटेड कंपनी कैन गेट फंड। फोर्थ पॉइंट इज अनसर्टेनिटी, यहां पर पक्का नहीं है कि कंपनी को पैसे मिल ही जाएंगे। डिपेंड्स ऑन द विल ऑफ द जनरल पब्लिक कि वेदर they are interested to invest money in that company or not. So it is not a sure fund as a company point of view. Now we come to the commercial bank. Commercial bank आपने पढ़ा हुआ है सर्विसेज में। कमर्शियल बैंक जैसे लोन देते हैं बिजनेस को, इन द सेम वे कमर्शियल बैंक प्रोवाइड्स लोन्स and advances in the shape of cash credit, overdraft loan and discounting of bill, and rate of interest on that loan is fixed. 3 तरह के लोन दिए जाते हैं। ओवरड्राफ्ट आपको पता है क्या होता है, कैश क्रेडिट आपको पता है कुछ फिक्स टाइम के लिए फंड दिया जाता है, एंड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल यू हैव आल्सो स्टडीड कि अगर कोई बायर गुड्स परचेज करता है क्रेडिट पे और बिल लिखते हैं तो उस बिल को जो है डिस्काउंट करा लिया जाता है बैंक में, एंड दैट फैसिलिटी इज ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय द कमर्शियल बैंक। सो लेट अस डिस्कस द मेरिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक। टाइमली फाइनेंशियल असिस्टेंस, जब भी बिजनेस को जरूरत होती है बैंक हेल्प करता है। बैंक ऑल्सो कीप सीक्रेसी ऑफ एनी कंपनीज इंफॉर्मेशन कि किस किसने लोन लिया है। इट इज ऑल्सो वेरी इजी टू रेज द फंड थ्रू द बैंक, क्योंकि अगर हम कंपेयर करते हैं शेयर्स या डिबेंचर्स में तो डिफिकल्ट प्रोसीजर हैज टू बी अडॉप्टेड, एंड इट इज ऑल्सो इकोनॉमिकल। अगर हम इसे पैसा चाहिए तो बैंक में बहुत कम फॉर्मेलिटी होती है एज कंपेयर टू शेयर्स और डिबेंचर्स। नाउ वी कम टू द डीमेरिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक। शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म फाइनेंस अवेलेबल होता है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस अवेलेबल नहीं होता। देयर इज अ चार्ज ऑन एसेट, कोई भी बैंक ऐसे लोन नहीं देता अनलेस एंड अनटिल कोई भी सिक्योरिटी एज अ मोर्टगेज ना रखी जाए, एंड देयर इज अ फिक्स्ड बर्डन इन केस ऑफ प्रॉफिट और लॉस दे हैव टू पे इंटरेस्ट, एंड रिस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस, बहुत सारी क्लॉजेस ऐसे हैं जो कि कंपनी को रिस्ट्रिक्ट कर देती है कि उसके पैसे को कैसे यूज करना है। जो संपत्ति उन्होंने गिरवी रखी हुई है उसको वो यूज नहीं कर सकते किसी और पर्पस के लिए। सो दिस वाज द लिमिटेशन ऑफ कमर्शियल बैंक। अब तक हमने क्या पढ़ा है? वी हैव स्टडीड द
retained earning, we have studied the public deposit, we have done the commercial bank. Now we will do the फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. डियर चिल्ड्रन, कुछ ऐसी भी इंस्टीट्यूशंस हैं जिनका सिर्फ एक ही काम होता है कि बिजनेस को कैसे डेवलप किया जाए, एंड दे प्रोवाइड लोन फॉर द बिजनेस पर्पसेस, एंड दे आर IFCI, ICICI Bank, IDBI, LIC and UTI. And what are the benefits of these फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन? दे प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फाइनेंस. जैसे कि कमर्शियल बैंक की लिमिटेशन थी कि वो लॉन्ग टर्म फाइनेंस नहीं देते. दे ऑल्सो प्रोवाइड मैनेजीरियल एडवाइस टू द बिजनेस फर्म, एंड दे ऑल्सो give the cash in lump sum and get back the cash in installment. easy installment में होती है. और in the period of depression गवर्नमेंट भी रूल्स लगाती है कि ज्यादा से ज्यादा फाइनेंस लोन दो लोगों को ताकि वो बिजनेस को लगा सकें. जैसे कि आजकल कोविड-19 के बाद गवर्नमेंट इज फंडिंग टू द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की ज्यादा से ज्यादा फंड देंगे, ज्यादा से ज्यादा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बनेगी और इंडिपेंडेंट इंडिया बनेगा. तो उसके लिए भी गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग लोन. देन डीमेरिट्स, मोर टाइम कंज्यूमिंग. ऐसा लगता है कि प्रोसीजर इज नॉट लेंथी बट इट इज वेरी लेंथी. रिस्ट्रिक्शन, गवर्नमेंट और these companies provide restriction in the company's affairs and they also interference in the management of company कि आप कैसे काम कर रहे हो. There is less freedom for using that fund which is taken from the different financial institutions. So this was all in all these sources of business finance. Thank you very much.